Hello everyone. So in this lecture we will be discussing about Satyagraha. So now what is Satyagraha and what is its fundamental aspects as outlined by Gandhi ji. So let's begin by discussing Satyagraha. Satya plus Agraha is Satyagraha. Now the word Satyagraha was coined, origin कैसे हुआ इस word का? It was coined in the midst of the Indian community movement of passive resistance in South Africa when Gandhi was looking for an appropriate word to describe a struggle in order to emphasize its moral content. So his associate Magan Lal Gandhi suggested the term Satyagraha, which meant firmness in good cause. सो गांधी जी ने चेंज कर दिया. पहले गांधी जी ने वर्ड रखा था पैसिव रेजिस्टेंस, फिर उन्होंने सत्याग्रह रख दिया. अब सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड है जो आया फ्रॉम द रूट से आया, ओरिजिन हुआ. और सत्य का मतलब होता है सच. सत्य का मतलब होता है सच. और आग्रह का क्या मतलब होता है? इंसिस्टेंस. नाउ इट कैन बी लूजली ट्रांसलेट करें तो इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ और होल्डिंग ऑन टू द ट्रुथ, ये कह सकते हैं हम इसे. अभी आगे मैं बताऊंगी कि पैसिव रेजिस्टेंस क्यों नहीं चूज़ किया, वर्ड सत्याग्रह ही क्यों चूज़ करा, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे. सो फिलहाल के लिए देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह वॉज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी, who used it in Indian independence movement and earlier in his struggles. So for Indian rights as determined but non-violent resistance to evil. So महात्मा गांधी ने ना फाउंड करा, महात्मा गांधी founded an ashram. So Mahatma Gandhi founded an ashram to teach satyagraha, where he asked his practitioners to follow the principles described as yams in Patanjali Yoga Sutras. So जो फर्स्ट टू यम्स थे वो थे अहिंसा और सत्य. जो सत्याग्रह का मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ द प्योरेस्ट सोल फोर्स अगेंस्ट ऑल इनजस्टिस, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. Suffering and trust are the attributes of soul force. Suffering and trust are the attributes of soul force. So truth is soul. सच क्या है भाई? सफरिंग और ट्रस्ट जो एट्रीब्यूट्स है सोल फोर्स के. ट्रुथ इज सोल और स्पिरिट एंड देयरफॉर वी कैन से सोल फोर्स. So it excludes the use of violence because man is not capable of knowing the absolute truth. So सत्याग्रह is not the imposition of one's will over others. हमारी will हम दूसरे पे थोप नहीं रहे हैं, but it's a appeal to the reasoning of the opponent. It's not the coercion but persuasion. Means urge for satya or the truth. Gandhi ji considered satyagrah not only as a tactic to be used in the political struggle, but also as a solution for interpersonal conflicts. He believed that it should be taught to everyone. A person who practices satyagraha is a satyagrahi. Now, what are the rules of satyagraha? क्या रूल्स है सत्याग्रह के? It could be resorted to only for just cause. It should be absolutely non-violent in thought, word and deed. It involves willing obedience to laws or rules that do not go against one's conscience. So ये इन्वॉल्व करता है विलिंग ओबीडियंस टू लॉस और रूल्स जो हमारे कॉन्शियस के अगेंस्ट ना हो. सत्याग्रहीज should have capacity and willingness to suffer. डिसिप्लिन जरूरी है. सत्याग्रही should be epitome of humility. Satyagraha can be offered only for public good, not for personal gain. Only persons of sterling character should resort to satyagraha. Cooperation with others, self-reliance is necessary and outside aid should not be looked out for. What
आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह के 3 एलिमेंट हैं बेसिकली. देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह. नंबर 1, ट्रुथ, सत्य. नॉन वायलेंस, अहिंसा. सेल्फ सफरिंग, तपस्या. सो ट्रुथ क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह इज लिटरली होल्डिंग ऑन ट्रुथ एंड इट मीन्स देयरफॉर द ट्रुथ फोर्स. So truth for Gandhi was God, and Gandhi defined his personal goal as to seeing God face to face. So Gandhi explained truth and God relationship as follows. गांधी जी ने कहा कि there are innumerable definitions of God because his manifestations are innumerable. So they overwhelm me with wonder and awe and for a moment stun me. But I worship God as truth only. ऐसा कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं. So Gandhi at the same time was aware of the fact that human mind cannot know the absolute fully. To have found the truth completely, Gandhi believed would mean that one has realized oneself and reached his destiny. He has become perfect. तो अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रुथ को कंप्लीटली, सच को हम पूरा जान लें, तो हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपनी मंजिल तक जाना होगा, तो हम परफेक्ट बन जाएंगे. और उनके अकॉर्डिंग, गांधी के अकॉर्डिंग, ना कोई रिलीजन है सच से बड़ा और कर्म से बड़ा, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं है. So reaching the pure and absolute truth is attaining moksha. So Gandhi holds that truth is God and maintains that it is an integral part of Satyagraha. Moving towards non-violence. So Sanskrit word ahimsa is translated as non-violence. Emphasizing on truth and non-violence in Satyagraha, Gandhi described सत्याग्रह को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि इट इज़ अ मूवमेंट इंटेंडेड टू रिप्लेस मेथड ऑफ वायलेंस. सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट है जो इंटेंड किया गया है कि वायलेंस के मेथड को रिप्लेस करा जाए. एंड ये एक ऐसा मूवमेंट है जो एंटायरली बेस्ड है अपॉन ट्रुथ. सो इन हिज सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी कंसिडर्ड ट्रुथ and non-violence, two sides of the same coin. Gandhi says, without ahimsa, it is not possible to seek and find truth. Ahimsa and truth are connected in such a way that they are impossible to separate them. So ahimsa is the mean and truth is the end. Means to means must always within our reach. That means ahimsa is our supreme duty. Ahimsa हमारी supreme duty है. So if we take care of the means, we are bound to reach the end sooner or later. अब मैं शॉर्ट में कहूँ तो सत्याग्रह मूवमेंट क्या है कि ट्रुथ अल्टीमेट गोल है और नॉन वायलेंस तरीका है. सेल्फ सफरिंग की बात करते हैं. सत्याग्रह सेल्फ सफरिंग इज विलिंगली एक्सेप्टेड बाय सत्याग्रही हिमसेल्फ with specific intention of moral persuasion of the enemy. Self-suffering is neither an inability to win over the opponent through violence, nor a meek submission. जो सेल्फ सफरिंग है, ना तो कोई इनेबिलिटी है, जीतने की कोई इनेबिलिटी नहीं है कि हम ओपोनेंट के ऊपर जीत जाएंगे वायलेंस से, ऐसा कुछ नहीं है. ना ही कोई सबमिशन है कि हमने अपनी एविल के डोर पे हाथ खड़े कर दिए, ऐसा नहीं है. ये एक लड़ाई है एविल सिस्टम और अपने सोल फोर्स के बीच में. सेल्फ सफरिंग एक ऐसा वे है जिससे हम स्ट्रांग बनते हैं. तो नॉन वायलेंस कैन नॉट बी टॉट टू अ पर्सन हु फियर्स टू डाई एंड हैज़ नो पावर ऑफ रेजिस्टेंस. सेल्फ सफरिंग इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम कावर्डाइज as well as violence against opponent. It is directed to resisting humiliation as well as. Gandhi gave supreme value to dignity of person. इसका मतलब he believed submitting to humiliation
and should be resisted even at the cost of self-suffering, even unto death. Now, what are dimensions of सत्याग्रह? Non-violent non-cooperation. तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉन कोऑपरेशन का कि अनजस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें, अगर कोई हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, सी द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट अनजस्ट कैन बी सक्सेसफुल इन देयर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम उन्हें एक्सप्लॉइट करने का मौका दें. दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस. तो वैसे तो हमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ओबे करना चाहिए ऑर्डर वगैरह, पर अगर गवर्नमेंट ही हमारा ध्यान नहीं रख रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको नॉन कोऑपरेट करना चाहिए. फिर विनिंग द ओपोनेंट बाय सेल्फ सफरिंग. दोज हु डू सत्याग्रह should have great restraint on themselves and should not be agitated on anything of the opponent. Hunger strike. Then we have compromise. Then before going on dharma, हम धरने पे जाने से पहले हमने बता दिया कि भाई ये मांग पूरी कर रहे हो तो ठीक है, वरना धरने पे जा रहे हैं. फिर फास्ट रखना, बॉयकॉट करना और परमानेंट रेजिडेंस को छोड़ देना. नाउ देखो, बिक्कू पारिक ने एग्जामिन करा कि भाई गांधी का क्या है. गांधी को पता है कि रैशनैलिटी और वायलेंस की कुछ लिमिटेशंस है, तो उनके अकॉर्डिंग सोल फोर्स जो है वो बेटर है इससे. तो अब लिमिट्स क्या सत्याग्रह की, वैसे कि गांधी जी वॉज रॉन्ग इन बिलीविंग दैट मोस्ट सोशल कन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व बाय टचिंग ओपोनेंट्स हार्ट. ऐसा ज़रूर थोड़ना है. कुछ कन्फ्लिक्ट तो इसलिए भी हो जाते हैं कि लोगों को लगता नहीं यही सही है, जैसे वॉर करना, अबॉर्शन करना. So satyagraha is dependent on publicity. गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस सल्यूशन, बट रियलिटी में वायलेंस कहीं ना कहीं करनी पड़ती है. तो गांधी जी का ये जो मानना था कि सत्याग्रह हर जगह चल जाएगा, वो गलत है. कुछ जगह उनने सत्याग्रह चलाया, जैसे चंपारण का सत्याग्रह. जो चंपारण का है बिहार में 1917 में. तो राजकुमार शुक्ला जो है वो देखते थे इंडिगो प्लांटर को. फिर यूरोपियन ने कहा कि भाई पीजेंट्स को इंडिगो ग्रो करो 3/20 हिस्से पे लैंड की. फिर जर्मन कहती है नहीं, इंडिगो हटाओ, डाइस ग्रो करो. तो अब भाई पीजेंट्स तो परेशान हो गए. तो गांधी जी ने फाइनली जो है पीजेंट्स को उनका हक दिलवाया, 25% दिलवाया कि भाई 25% मनी इनको कंपनसेट करो. फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उसमें प्लेग आ गया था. तो गांधी जी ने स्ट्राइक कराई और 35% बोला कि वेज बढ़ाओ. तो उनको चाहिए तो 20% था, और फिर लास्ट में वो लोग मान गए हंगर स्ट्राइक की वजह से. फिर खेड़ा सत्याग्रह देखो, ड्रॉट आ गया था, क्रॉप्स फेल्ड हो गए थे गुजरात में. यील्ड जो है कम थी, 1/4 हिस्से भी कम थी. तो गांधी जी ने पीजेंट्स को कहा विद होल्ड करने को, और फिर बाद में फ़ायदा हुआ. फिर ऐसे ही रॉलेट सत्याग्रह, जब ब्रिटिशर ने कहा था कि 2 साल के लिए बिना वारंट के अरेस्ट कर लो 1919 में, तो गांधी जी ने वो हटवाया, पर बाद में जलियांवाला बाग हो गया. अब हम समझते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में क्या फ़र्क है. देखो, पैसिव का मतलब है वीकनेस की तरफ आता है, एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट एक्टिव रेजिस्टेंस टू एविल. सो लव इज़ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सत्याग्रह, वेयर एज लव जो है पैसिव रेजिस्टेंस में नहीं था. फिर फिजिकल फोर्स दो नॉट यूज्ड, पर पैसिव में आ जाता है. सत्याग्रह टोटली नॉन वायलेंट दिखाता है ना. सत्याग्रह भाई वंस नियर डियर वन के लिए, और पैसिव रेजिस्टेंस जो है अदर पार्टी के लिए. फिर हैरेसमेंट जो है वो कम्प्लीटली रूल्ड आउट नहीं है इसके अंदर पैसिव रेजिस्टेंस में, पर सत्याग्रह में है. सेल्फ सफरिंग कॉमन है दोनों में, ठीक है. सो आई होप सत्याग्रह क्लियर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.